Hello students, welcome all of you. In last lecture, we have studied the series and parallel combination of resistors and their effective resistances in series and parallel combination. When we consider the series combination of resistors, let when the resistances R1, R2, R3, R1, R2 and R3 are connected in series combination, then their effective resistance is equal to Rs is nothing but the effective resistance in series combination is equal to the sum of the resistances connected in series combination. Therefore, we can write Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the resultant resistance or total resistance when the resistances R1, R2, R3 are connected in series combination. Similarly, when the resistances are connected in parallel combination, let's consider there are three resistances R1, R2, R3. This is R1, R2 and R3 are connected in parallel combination, then the effective resistance in this parallel combination is equal to Rp is the effective resistance in parallel combination is given as the reciprocal of effective resistance 1 upon Rp is equal to sum of the reciprocal of total resistances or all resistances connected in parallel combination. Therefore, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. In this way, we can calculate the effective resistance in parallel combination or here the effective resistance in series combination. Today, we are going to solve some problems on series and parallel combination of resistance. Let here consider the first question. Here in this given circuit, the resistance R1, R2 and R3 are connected in series such a way that the resistance R2 and R3 are in parallel to each other, whereas the total resistance of this parallel combination of R1 and R2 is again in series with resistance R1. Here we have to calculate the total resistance of circuit first, then we have to calculate the total current flowing through the circuit. टोटल सर्किट में से कितना करंट फ्लो होने वाला है ये भी हमें कैलकुलेट करना है, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. फॉर दैट लेट कंसिडर फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. नाउ हियर लेट कंसिडर यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, रेजिस्टेंस R1 having value 4 ohm, resistance R2 having value 3 ohm and resistance R3 having value 6 ohm are connected such that this R2 and R3 क्या है एक दूसरे को पैरेलल में. तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. R2 एंड R3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा. बाद में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आने वाला है वो रेजिस्टेंस R1 को क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो हम टोटल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट कंसिडर हियर R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, R2 एंड R3 इन पैरेलल. Therefore, when the resistances are in parallel combination, their effective resistance is given as, therefore we can write effective resistance of parallel combination 1 upon Rp is equal to 1 upon R2 प्लस 1 अपॉन R3. जो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए उनका क्या लेना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है और उनकी क्या करनी है, हमें सम करनी है. इट विल गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. देयरफॉर 1 अपॉन Rp is equal to what is the value of R2 3 ohm plus what is the value of R3 6 ohm 1 upon 6. Now here अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करनी है. हियर वी हैव टू कंसिडर द डिनोमिनेटर ऑफ टू टर्म्स. यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो
इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टर्म का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 होगा। अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 2/6 प्लस 1/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हुआ। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर की एडिशन करके न्यूमरेटर में लिखेंगे। 2 + 1 2 + 1 क्या आया हमारा रिजल्ट, 1/RP इज इक्वल टू 3/6। 2 + 1 3/6 और 3 1 जा 3 2 जा 6। देयरफॉर वी कैन राइट 1/RP इज इक्वल टू 1/2। हमें 1/RP की वैल्यू मिली है, हमें क्या चाहिए, RP की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड, अगर हम दो साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, और बाय इन्वर्टेंडो टेकिंग रेसिप्रोकल और बाय इन्वर्टेंडो वी कैन राइट RP इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। नाउ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, कितना है हमारा 2 ओहम। नाउ दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अगेन इन सीरीज विद द R1। देयरफॉर फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ सेकंड हियर, नाउ RP and R1, this RP and R1 is in series combination. Therefore we can write RS, effective resistance in series combination, is equal to R1 plus यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा RP। Therefore RS, effective resistance in series combination, is equal to, what is the value of R1, 4 ohm, plus what is the value of RP, 2 ohm. Therefore RS is equal to 6 ohm. टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे सर्किट का, 6 ohm. Therefore the total resistance of circuit is equal to 6 ohm. Now we have to calculate second. What is the second question? सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर बाय यूजिंग ओम्स लॉ, व्हाट इज द ओम्स लॉ, we know that V is equal to voltage, applied potential is equal to I into R, where I is the current flowing through circuit and R is the resistance. Now what is the total voltage applied across the circuit is given 12 volt. Therefore 12 is equal to, what is the current we have to calculate, I multiplied by resistance कितना है हमारा टोटल सर्किट का, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 6। Therefore I is equal to 12 divided by 6 और I is equal to 2. What is the unit of current, ampere A. Now last question क्या पूछा है उन्होंने, the potential difference across resistance R1। R1 के across यहाँ पे potential difference कितना होगा, let's consider that potential difference is V1। Now therefore we can apply again Ohm's law to only this resistance R1 by using Ohm's law फॉर R1। रेजिस्टेंस R1 के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज द ओम्स लॉ, वी कैन राइट V1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू I1, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 मल्टीप्लाइड बाय R1। बट I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल करंट आपसे जितना जाने वाला है वही करंट R1 में से फ्लो होने वाला है। तो टोटल करंट कितना था हमारे यहाँ पे 2 एम्पियर। वी कैन पुट दिस 2 एम्पियर एज अ I1। व्हाट इज द R1, R1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 4 ओम। देयरफॉर वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू, व्हाट इज I1, I1 इज नथिंग बट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे टोटल करंट जितना जाने वाला है उतना ही करंट I1 से जाने वाला है, लेकिन I2 एंड I3 से जाने वाला करंट यहाँ पे क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ठीक है, I1 हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 2 ओम मल्टी 2 एम्पियर सॉरी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 4 ohm. Therefore V1 potential difference across resistance R1 is equal to 2 multiplied by 4, 8 volt.
देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज इक्वल टू 6 ohm, the total current flowing through the circuit is equal to 2 ampere and the potential difference across the resistance R1 is equal to 8 volt. Let's consider the second question. Here resistance is 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohms are connected as shown in circuit. Here we have to calculate the total resistance of circuit and the total current flowing through the circuit. यहाँ पे 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम्स के रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए सर्किट में, 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए, हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. नाउ व्हेन वी ऑब्जर्व दिस सर्किट, यहाँ पे क्या किया है, 10 ओम एंड 40 ओम्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल में. 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. बाद में इन तीन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेगा. फिर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे. फिर हम उससे उसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट फर्स्ट हियर कंसिडर रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ohm and 40 ohm are in parallel combination. Therefore, we know that the total resistance in parallel combination is given as 1 upon Rp, but denote it at Rp1 because यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, इसलिए हम इसको Rp1 से डिनोट करेंगे. 1 अपॉन Rp1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हमारा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 10 प्लस इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 40. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं उनका हम रेसिप्रोकल लेते हैं और बाद में उनकी एडिशन करते हैं. ठीक है, देयरफॉर 1 अपॉन Rp1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये जो दो टर्म दिए यहाँ पे हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. इसलिए इस फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 4 जा 40. अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर ये फर्स्ट वाली टर्म क्या होगी हमारी, 4 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हुआ. Therefore, we can write this denominator as 1. Therefore, 1 upon Rp1 is equal to 40. This 4 plus 1, 4 plus 1 और 1 upon Rp1 is equal to क्या आएगा हमारे यहाँ पे 5 upon 40. Now, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें Rp1 की वैल्यू चाहिए. फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, या तो फिर we can write by invertendo. बाय इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखते हैं. देयरफॉर क्या आएगा हमारे यहाँ पे, Rp1 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 और Rp1 इज इक्वल टू 5 8 जा 40. देयरफॉर वी कैन राइट हियर 8 ओम. फर्स्ट पैरेलल सर्किट का हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पे 8 ओम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेकंड पैरेलल सर्किट. नाउ व्हेन वी कंसीडर दिस 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम रेजिस्टेंसेस, अगेन दिस 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. देयरफॉर नाउ हियर नाउ 30 ओम एंड 30 ओम 20 ओम and 60 ohm are in parallel. Therefore, we can write 1 upon Rp2 is equal to 1 upon first ohm. First कितना है हमारा रेजिस्टेंस 30. Therefore, 1 upon 30 plus 1 upon 20 plus 1 upon 60. अगेन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर क्या आएगा हमारा 1 अपॉन
RP2 is equal to 2 divided by 60 plus 3 divided by 60 plus 1 divided by 60. Therefore, now we can write it as at once. एक बार हम डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, फिर न्यूमरेटर के एडिशन करके हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2 plus 3 plus 1 अपॉन RP2. देयरफॉर 1 अपॉन RP2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे 2 plus 3 5 plus 1 6 divided by 60. Again by invertendo we can write RP2 is equal to 60 divided by 6 और therefore RP2 is equal to कितना आएगा हमारा यहाँ पे 10 ओम. फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम. सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारा यहाँ पे 10 ओम. नाउ दिस टू रेजिस्टेंसेस आर इन अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन. देयरफॉर वी कैन राइट द टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू वी कैन राइट RP1 प्लस RP2. RP1 कितना है हमारा यहाँ पे 8 ओम प्लस RP2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 ओम. Therefore RS और टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा यहाँ पे 18 ओम. यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू 18 ओम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. हमें यहाँ पे आप टोटल करंट कितना फ्लो होगा कैलकुलेट करना है. नाउ टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द ओम्स लॉ. नाउ सेकंड by using Ohm's law. Ohm's law यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, what is Ohm's law? V is equal to IR. The potential difference across the circuit is equal to current flowing through the circuit multiplied by total resistance of the circuit. Now what is the total potential difference और voltage applied across the circuit? यहाँ पे voltage कितना दिया है हमें यहाँ पे 12 ohm. You can check this figure on page number 39. Therefore we can write here 12 is equal to what is the current हमें कैलकुलेट करना है I multiplied by what is the resistance, total resistance कितना है हमारे यहाँ पे 18 ohm. Therefore the current flowing through circuit I is equal to 12. यहाँ पे 18 क्या है मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे इस साइड में क्या होगी वो डिवाइडेड बाय होगी. Therefore 12 डिवाइडेड बाय 18 और करंट कितना आएगा हमारे यहाँ पे I is equal to 0.67. what is the unit of current? Ampere or A. Therefore this is the total current flowing through the circuit. Okay.